السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ نیدرلینڈ کنگڈم آف دی نیدرلینڈ کے کل 7 ریاستوں میں سے ایک ہے۔ نیدرلینڈ کو نیدرلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور نیدرلانت بھی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہالینڈ ایک آزاد ملک ہے تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ ہالینڈ نیدرلینڈ میں ہی موجود 2 صوبوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک آزاد ملک ہوگا، حالانکہ یہ پنجاب اور سندھ کی طرح ہی ایک ہی ملک کے 2 صوبے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس ملک کے نام کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ مملکت نیدرلینڈ کی باقی جو 6 خود مختار ریاستیں ہیں ان کے بارے میں بھی آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ چونکہ آج کی ہماری ویڈیو نیدرلینڈ پر ہے تو ہم اپنا دھیان اسی ویڈیو کی جانب رکھتے ہیں۔ دوستو مملکت نیدرلینڈ اور نیدرلینڈ کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم ہے۔ اس شہر کا نام اس شہر میں موجود ایمسٹرڈیم سے رکھا گیا تھا۔ یہ شہر نیدرلینڈ کا دارالحکومت ہونے کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، جو اپنے اندر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ مملکت نیدرلینڈ کا کل رقبہ 42,525 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 131ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے، جس میں سے 41,543 مربع کلومیٹر رقبہ اکیلے نیدرلینڈ کا ہی ہے، جبکہ باقی تھوڑا سا حصہ باقی تمام ریاستوں کا آتا ہے۔ نیدرلینڈ کی کل آبادی 1,71,00,000 افراد سے زیادہ ہے، جس میں صرف 3 لاکھ افراد ہی دیگر 6 ریاستوں کے ہیں۔ باقی تمام لوگ نیدرلینڈ کی سرزمین پر ہی بستے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا نمبر دنیا بھر میں 66واں ہے۔ مملکت نیدرلینڈ کی 3 ریاستوں میں چلنے والی کرنسی امریکن ڈالر ہے۔ 2 ریاستوں میں نیدرلینڈ اینٹیلین گلیڈر، ایک ریاست میں اروبن فلورن، جبکہ نیدرلینڈ میں یورو کرنسی چلتی ہے۔ اگر باقی تمام چلنے والی کرنسیوں کا موازنہ کیا جائے تو وہ یورو کے مقابلے میں کمزور ہیں، مگر پاکستانی اور ہندوستانی روپے سے پھر بھی بہت بہتر ہیں۔ نیدرلینڈ کی ڈومین نیم .nl ہے۔ نیدرلینڈ کے کالنگ کوڈ 2 ہیں، ایک +31 اور دوسرا +599۔ نیدرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ دوستو نیدرلینڈ میں انسانی زندگی کے وجود کی تصدیق کوئی 5000 قبل مسیح کی گئی ہے۔ اس ملک کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رومن دور میں یہ سلطنت روما کی 4 صدیوں تک سرحد بنا رہا تھا، یعنی 4 صدیاں اس خطے پر رومی سلطنت کا دورہ رہا۔ رومی سلطنت کے دور میں یہاں دیگر بہت سے علاقوں سے قبائل آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے، جنہوں نے اس خطے کی آباد کاری میں بڑا کردار ادا کیا۔ آج بھی اگر نیدرلینڈ میں بسنے والے لوگوں کا حساب لگایا جائے تو ان میں 80.7% ڈچ لوگ، 5% دیگر یورپی، 2.4% انڈونیشیائی، 2.2% ترک، 2% مراکشی، 2% سیرینامی، 0.8% کیریبین، جبکہ باقی 4.8% دیگر علاقوں سے آ کر بسنے والے قبائل ہیں۔ دوستو رومن دور کے بعد 411 عیسوی سے 1000 عیسوی تک اس خطے پر فریسیائی لوگوں نے حکومت کی۔ 1000 عیسوی سے 1432 عیسوی تک یہ مقدس رومی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ 1433 عیسوی سے 1567 عیسوی تک یہ ملک برگنداس اور ہیسبرگ خاندان کی سربراہی میں چلا گیا۔ یہ دونوں خاندان کافی سالوں تک حکومت کرتے رہے۔ برگنداس خاندان تو ختم ہو گیا، مگر ہیسبرگ خاندان کی شاخیں آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہیسبرگ خاندان کے دنوں میں سلطنت ہسپانیہ نے نیدرلینڈ کی اس سرزمین پر مداخلت شروع کر دی۔ ان دنوں میں ہالینڈ کا بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ ہالینڈ کے لوگوں نے
हस्पानवी सल्तनत की गुलामी को कबूल नहीं किया और 26 जुलाई 1581 को आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये फैसला स्पेन वालों को नागवार गुजरा तो उन्होंने ज़बरदस्ती नीदरलैंड के कई मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। चूंकि सल्तनत हस्पानिया की मदाखलत के साथ ही जंग शुरू हो गई थी और फिर यह जंग लगातार 80 साल चलती रही। इस जंग में 10,000 से ज़ायद फौजियों और शहरियों को हलाक कर दिया गया था और फिर 1648 में होने वाले मुआहदे के बाद नीदरलैंड के लोगों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया था। इस मुआहदे को तारीख में वेस्टफालिया के अमन का नाम दिया गया है। यानी 30 जनवरी 1648 को ये एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस दौर में हॉलैंड बहुत ही अहमियत का हामिल था। आज़ादी के बाद से इस मुल्क को पूरे यूरोप में हॉलैंड के नाम से शोहरत मिली। इसीलिए आज भी कई लोग हॉलैंड को एक आज़ाद मुल्क मानते हैं, जबकि हकीकत में ये नीदरलैंड के 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है। आज़ादी के बाद भी कई इलाकों के हसूल के लिए जंगें होती रहीं। 9 साल के लिए किंगडम ऑफ हॉलैंड के नाम से एक हुकूमत भी कायम की गई थी, मगर 1815 ईस्वी को इस हुकूमत यानी इस सल्तनत का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड रखा गया था। दूसरी जंग अजीम के बाद 1-2 रियासतें मजीद इसके साथ मिल गईं। दूसरी जंग अजीम से पहले 1,40,000 यहूदी नीदरलैंड में बसा करते थे। जंग के बाद सिर्फ 40,000 बच गए थे, फिर वो भी इसराइल मुंतकिल हो गए। 10 अक्टूबर 2010 को कैरिबियन नीदरलैंड का क़याम अमल में आया, जब 3 कैरिबियन जजीरा नुमा छोटे छोटे ममालिक ने किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के साथ इश्तराक किया। दोस्तों, एक अरसे तक इस मुल्क के लोगों ने लाशों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देखा, मगर पिछली 1 सदी से लगातार ये मुल्क अपने आप को मनवाने पर तुला हुआ है। इस मुल्क के लोग किस कदर खुश मिजाज हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2011 में नीदरलैंड को दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मुल्क करार दिया गया था। नीदरलैंड में सभी लोगों को अपनी अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्की आबादी का 43.8% मसीही लोग, दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है जो आबादी का 5% है। 1% बुद्ध मत के पैरोकार यहूदी और हिंदू हैं, जबकि बाकी 50% से कुछ ज़ायद लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। वलंदेजी नीदरलैंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जुबान है। इस जुबान को सरकारी जुबान का भी दर्जा हासिल है। फ्रीसियाई, अंग्रेजी और दीगर कई जुबानें भी इलाकों और कबीलों के हिसाब से बोली जाती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो नीदरलैंड के लोग अपने मुल्क से किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नीदरलैंड के लोग तकरीबन 47,000 अमेरिकन डॉलर फीकस मजमूई आमदनी के साथ दुनिया भर में 12वें नंबर पर आते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी नीदरलैंड के लोग कारों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उनका मानना है कि इन चीज़ों के बेजा इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है, इसीलिए वो कारों की जगह साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड में साइकिलों की तादाद इंसानों की तादाद से 1.3 गुना ज़्यादा है। यानी अगर 1000 लोग हैं तो उनके पास 1300 साइकिलें हैं। नीदरलैंड में बादशाहत चलती है और नीदरलैंड की मलका एक अर्जेंटीनियन है। नीदरलैंड में तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। 5 साल से 16 साल तक हाई स्कूल का दौरानिया होता है। औरतों और मर्दों की तालीम की शरह एक जैसी है, यानी 99%, जबकि जराइम यहाँ ना होने के बराबर है। जराइम ना होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2013 में नीदरलैंड में सिर्फ 8 कैदियों को बंद किया गया था। नीदरलैंड में चलने वाली तमाम डच इलेक्ट्रिक ट्रेनें हवा की तवानाई से चलती हैं, जिसमें रोजाना 6 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं।
तवाइफ होना नीदरलैंड में जायज़ है, बल्कि नीदरलैंड में असमत फरोशों को बाकायदा टैक्स भी अदा करना पड़ता है। नीदरलैंड दुनिया में सबसे लंबे लोगों का मुल्क है। इनके कद 5 फुट 7 इंच से लेकर औसतन 6 फुट तक के होते हैं। दुनिया के 4 दीगर ममालिक की तरह नीदरलैंड में भी आपको शराब मैकडोनल्ड से मिल जाएगी। एम्स्टर्डम शहर में 35% लोग रोजाना अपना सफर साइकिल पर करते हैं। शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़े इस बेहद खूबसूरत मुल्क की सरहदें मशरिक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम, शुमाल और मगरबी हदूद समुंदर से लगती है। रूटरडैम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में ही मौजूद है, 14वीं सदी के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी थी। ये 1962 से 2004 तक दुनिया की सबसे मसरूफ बंदरगाह थी। इस बंदरगाह को आज भी यूरोप की सबसे बड़ी और मसरूफ बंदरगाह होने का एजाज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड दुनिया के सबसे जदीद ममालिक थे। जहां दुनिया के कुछ ममालिक हम जिन्स परिस्तों को शादी के हकूक दे रहे हैं, वहां आपको ये बात भी बता दूं कि नीदरलैंड वो पहला मुल्क था जिसने 2001 में हम जिन्स परिस्तों को शादी की इजाज़त दे दी थी। नीदरलैंड के लोग बहुत सेहतमंद होते हैं। वैसे भी सेहतमंदी के हवाले से नीदरलैंड दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। नीदरलैंड अपने फूलों और नहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी नीदरलैंड में ही मौजूद है। नीदरलैंड में मौजूद डच लोग ऐसी लोग हैं जिनकी 94% आबादी 2 जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखती है। नीदरलैंड में 35,000 से जायद स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिनमें 50 लाख से जायद अफराद रजिस्टर्ड हैं। फुटबॉल नीदरलैंड में सबसे ज्यादा शौक और तादाद में खेली जाने वाली खेल है। इसके अलावा 2 मशहूर खेलें हॉकी और वॉलीबॉल हैं। इसके अलावा ओलंपिक्स की तमाम खेलें नीदरलैंड में बहुत शौक से खेली जाती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड किस कदर खूबसूरत है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2017 में 1,76,10,000 गैर मुल्की अफराद ने नीदरलैंड का सफर किया। सियाहों की इस तादाद से आप खुद अंदाजा कर लें कि नीदरलैंड सियाहत के शोबे से कितना कमा रहा होगा। 16वीं सदी में अपनी आज़ादी के बाद से नीदरलैंड ने बेशुमार मुश्किलात भी देखी, मगर नीदरलैंड तब से आज तक ज़राअत, माहीगीरी, तजारत और बैंककारी के निज़ाम में दिन ब दिन तरक्की करता नजर आया है और यही शोबे नीदरलैंड की तरक्की की आज भी बड़ी वजह माने जाते हैं। नीदरलैंड ने अपनी समुद्री सरहदों की तरफ दीवार तमीर की हुई है ताकि समुद्र का पानी नुकसान न कर सके। कहा जाता है कि अगर ये दीवारें खत्म कर दी जाएं, तो नीदरलैंड का 43% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। नीदरलैंड यूरोप का सबसे गुंजान आबादी वाला मुल्क है। नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शराब एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। नीदरलैंड के 60% से ज्यादा लोग ज़राअत और बागबानी के शोबे से मुंसलिक हैं। दोस्तों, ये थी नीदरलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये खूबसूरत